सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का ये पोर्शन है, क्या है ये? ये है लेटर 130 to 138। हाँ, तो चलो शुरू करो, समरी करो। हाँ जी, आज मेरा समरी है। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। स्वामी तुरानंद जी's letters. Letter 130. Swami Turiyananda has suggested to the devotees to detach the self from the sense organs and renounce the world to attain immortality. Practice renunciation and steadfast devotion makes everything easy by the God's grace. One drop of God's grace removes all ignorance accumulated through innumerable births. But longing is essential to get quick perfection. After committing a sin, repentance makes one free, and by desisting and deciding not to sin, purify one. 131. Letter 131. Swamiji writes, work, internal or external, must go on. In the beginning, all work is done to realize God. After attaining Him, the work done is not for selfish gain and not classified as work. Lord Krishna asked people to work without least motive to purify the mind and see oneself in all. When one can reach there, there will be no more work. Work and such other things last till the I is there. The devotees do all the work in the spirit of not I, but thou. Jnani never identifies himself with any action. Later, 132. Swami says that people intend to enjoy but without misery, which is impossible. Lord Krishna said, only one here and there amongst thousands strive for perfection. Maya does not allow people to have self-awareness. He emphasizes to practice meditation on the Gita all the time, even while walking, sitting, eating, and lying down. The meaning will be revealed in the heart, which is gospel truth. The marks of a person who is above 3 gunas as stated by Krishna. He who worships me with yoga of undeviating love arises above the gunas and becomes fit to be one with the Brahman. He also mentioned the reason that he is the abode of Brahman, the immortal, immutable, eternal dharma, and of absolute bliss. Swami says that is why chapter 14th of the Gita should be practiced and experienced, and nothing else is needed. Lord Krishna has depicted the signs of a true devotee in the chapter 2, 12, and 14 with a little change so that people could compare them with their own lives. Later, 133. Swami writes here, struggle along with surrender and submission leads to peace. He instructs to follow a routine and practice on regular basis, which brings sahajavastha or the natural state.
when the mind becomes saintly and does not need external holy company. Later, 134. Swamiji says that when the mind becomes pure, the Atman manifests there and stops its function, universe and universal mind. Both are finite, but only the Paramatman is supreme self. Thinking deeply will make it clear. Later, 135. Swamiji is of the opinion that progress in spiritual life comes slowly in the course of time. In practicing non-attachment and offering the fruits of action, devotion, bhakti, devotion means bhakti, developed, which is sheer love as a mother has for the children. Later, 136. Here Swami says that God is omniscient and reminds us of the master's story about the pilgrim who went to visit Lord Jagannath but lost the way. His genuine love led the way. He advises to have the equanimity of the mind and not to be restless. As Master said, that the thread should be moistened and rubbed to make one pointed, then only it will pass through the needle eye. If one has real devotion in heart, even if the means are imperfect, God knows our innermost thoughts. As cow gobbles the fodder, if mixed with oil cake, similarly, God accepts that where worship done sincerely. Later, 137. In this letter, Swami says that wherever one goes for spiritual practices, mind will always follow. Worship the Lord, the mind will become by itself. Curb out going tendencies and make effort to be indrawn. Later, 1. Swamiji asks to have faith on mother and to ask for whenever is wanted and it will be fulfilled. Mother knows the heart and arranges things accordingly. Sri Ramakrishna is the embodiment of the Vedantic truth, which was manifested in full. Pray to him and have everything. We feel unhappy and miserable in the whirlpool of Maya. We should not forget our real self, our dear mother whose children we are. Now, a few letters. Swami asks to try to understand the spirit of Gita and to live up to it. Swami says that about Swami Vivekananda that what he has done for the world, let it be realized and be benefited for ages. His death was conscious passing out of his body. Now, this is all. My summary is finished here. Okay, good. Actually, this, when I was also reading, these letters are very, very important. We are doing just once a week is all right, but I would suggest that all of you have got it. One page every day you people read. And this is very important. These are all, and today, of course, it was something like reading Gita. He has repeatedly quoted from Gita, and a lot of important instructions and hints are given in a spiritual book, letters. So I will request you that all of you read 1 page or 2 pages of these letters every day. Okay? Yes. So we start with questions, and first Itu Ghosh itself will do the questions. You start with questions. Okay? Okay. So my first question is: in the beginning of work is in the beginning all work is done to realize God. After attaining Him, further work is done for His sake only.
So my question is, this is from the text. Now my question is, what are the differences in these works? We always offer all our karma fruits to him. So the work done for him and for my sake, what is the difference? No, there is no difference. The work, same work you are doing. Okay. And you go on, earlier you used to suppose you have realized God. So all of us will realize and get the impression that you have realized the God. We will be all the Zoom meeting, Zoom participants will be blessed if you feel realized that you have realized the God. Okay? Okay. So no. अरे but मैं ये बोल रहा हूँ कि after that you go on doing for the sake of God, you go on doing. This is what he said. Before realizing, we do work for realizing God. And after realizing, we do sake for his sake. No option of offering fruits to him. Whatever you have done, that is for God. Or our Okay. fruit, whatever you do, it is for God. I say, not how you do, for his sake. That is giving fruits to him. No, there is nothing. Everything you are going on doing and you consider that I am doing for God. That's all. Okay. So the question does not arise. There is no debate whether I should consider Do- devote the fruits to God, what benefit Okay. I will get. No, benefit is not necessary. Yes. Just as a mother does mother does everything for the child. Does she expect anything? Nothing. No. Similarly, here God is there, so you consider a child also will do. Mother has told you do this. Child will do. He does not expect anything. Similarly, God becomes our father and mother and go on doing whatever you want to do for the year's sake. Right. Now, Okay. initially, we do it so that we may have a vision of God. But Exactly. even without, let us go on doing work for the sake of God. There is no Okay. question about it. महाराज जी एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि once you realize God, whatever you do, you are doing for God. But he said we are not reached to the stage of realization of the God. But even then, whatever we just pray, say कि ये जो कर रहे हैं माँ हम तेरे लिए ही कर रहे हैं और तेरे आशीर्वाद से कर मैं थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि हमारी स्वार्थ ले जाता है कि माँ का दर्शन हो जाए, जरा सा फर्क है और कुछ नहीं है। हम तो भगवान के लिए ही कर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने कहा प्रभु दर्शन दे देना। अच्छा जी और कुछ जी ठीक है। So the second question है, my second question is, work either internal or external must go on. What is this external work? और what is this internal work? Internal work जब और कमरे में झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, क्वेश्चंस पूछना है, कहीं मार्केट में जाके खरीदना है, ये सब एक्सटर्नल वर्क हुआ। अच्छा। और इंटरनल वर्क तो आगे पढ़ो उसमें लिखा ही हुआ। whenever you are read ना, उसको देखोगे नीचे लिखा हुआ है इंटरनल में मेडिसिन एंड द लाइक, मेडिटेशन एंड द लाइक। सूर्यानंद जी ने आगे लिखा है, you have not seen that portion. Just next sentence it is there. He has written internal work is meditation and the like. Yes. भगवान का चिंतन करना, ये सब जो हुआ ये इंटरनल वर्क हुआ, समझे ना? और एक्सटर्नल वर्क हो गया, बात बता दिया। मैं अपना काम, ठीक है। इंटरनल वर्क हुआ, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, क्वेश्चन तुमको बोला क्वेश्चन बनाओ तो क्वेश्चन बना रहे हो, ये सब इंटरनल वर्क हुआ जी। And my third question is, Krishna says, he who worships me with the yoga of undeviating love. So please explain this yoga of undeviating love. यो मां च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्याय ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 18 चैप्टर में है, लास्ट क्लास में है। यो माम, मुझे, अव्यभिचारेण यानी ऐसी भक्ति जिसमें किसी प्रकार से कम ज्यादा नहीं,
अभी बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, मन शांत है, शरीर अच्छा है, तब बड़ी भक्ति हो गई। जब पेट खराब हो गया, मेडिसिन अपने खाना, पैसा भी कम हो गया, चिंता हो गई, तब भक्ति क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई। हाँ, एक बात तो ये भक्ति में व्यभिचार हो गया है ना, भेद हो गया। अच्छा। या फिर दूसरा भेद हुआ, आज अभी तो भगवान को भक्ति किया, कल से आप अपने बच्चों को प्रेम करोगे। नाना प्रकार के प्रेम है ना, भक्ति यानी प्रेम भी होता है। तो संसार के भी को भी प्रेम करोगे, भगवान को भी प्रेम करोगे, तो भक्ति में प्रेम व्यभिचार हो गया, तो भक्ति में व्यभिचार हो गया ना, भक्ति डिवाइड हो गई तो जी जी। हाँ। सो व्यभिचार का अर्थ है भक्ति का दूसरे किसी को भक्ति नहीं करना, और जैसी भक्ति करते हैं उसी तीव्रता से करते रहना। अच्छा। 1 पॉइंटेड डिवोशन, और क्या है इंग्लिश में क्या बोला उन्होंने? इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। He who worships me with the yoga of undeviating love. अनडिविएटिंग यानी और कहीं मन नहीं जावे, सदा सर्वदा भगवान का चिंतन। हमारा तो क्या है, 10 मिनट भगवान का चिंतन है और सारा दिन संसार के लोगों में पड़ा हुआ है जी। तो हम तो भक्ति भी नहीं है, तो अव्यभिचारी भक्ति का बात ही क्या उठा। ऐसे प्रिय भक्ति के और किसी की चिंता नहीं करे। ये बड़े बड़े संतों की बात है। बड़े पैसे की कमी है, खाने को नहीं मिल रहा है, पत्नी ने बोला क्या होगा मालूम नहीं, इसका है ये वो प्रसिद्ध है का 7 दिन बाद मैं काम कर रहा हूँ, 7 दिन बाद पैसे मिलेंगे, 7 दिन तक किसी तरह चलाओ, पत्नी को बोल दिया। अब घर वापस आ गए, अपने भजन के आ गए और फिर डूब गए भगवान के भजन में, दिन रात लगे हैं। 7 दिन निकल गया, पैसे की कोई चिंता नहीं की, और घर लौट रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। जो बोलेंगे कि पत्नी पूछेगी पैसे क्या क्या हुआ, तुमने कहा था 7 दिन नौकरी करो, तुम्हारे मालिक तुमको पैसे देंगे, क्या होगा? घर जाके देखा तो पकवान की गंध आ रही थी। भगवान ने या कोई आदमी आया, बहुत सारा सामान लेके आया और उनको दे दिया कि देखो तुम्हारे जो पति हैं वो इतना काम कर रहे हैं, तो ये उनकी सब उसके बदले तुम्हारे को जो नौकरी का वो है वो दे रहा हूँ, उनको बोलना और काम करोगे और पैसा। तो ये संतों की कहानी है, कैसी भी परिस्थिति होवे तो वे वैसे ही लगे रहते हैं। हम लोग के व्यभिचारी भक्ति ही नहीं है तो अव्यभिचारी भक्ति का क्या होगा बाबा? चलो जी। माय क्वेश्चन, मेरा प्रश्न समाप्त हुआ। अच्छा, सुबीर मजुमदार आ जाओ बस। सुबीर। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज 218, लेटर 130 में ही है, सेकंड पैराग्राफ। स्वामी तुरायानंद सेज, when one is strongly connected with the supreme self, the pairs of opposite do not exist. In other words, good and bad cannot perturb him anymore. My question is, as we progress in spiritual life, does the sense of good and bad or the pair of opposites also diminish for a devotee? Yes. No. Yes, yes. जी, Actually, who has connected with Brahman, जी, तो वो तो गुणातीत हो जाता है भाई। जी, जी, exactly. हाँ, तब जब गुणातीत हो जाएगा तो अच्छा बुरा कहाँ होगा उसको? हाँ, वो तो है महाराज। हाँ, तो वो है ना, धीरे धीरे कम होता जाता है। जी, जी। और तो क्या है, कहीं शास्त्र में कहा है या नहीं, ये सब नहीं, अधिक सात्विक होता जाता है। जी। हाँ, ये अंत में गुणातीत हो जाता है जैसा कहा है। हाँ। और ये धीरे धीरे होता है। जी, जी। और धीरे होना चाहिए। प्रारंभ में डिफरेंसेस इन गुड बैड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाद में उसकी चिंता नहीं होती। जी। और एक दृष्टांत तो उसका प्रसिद्ध है ना, पवानी बाबा का है, वो चोर नहीं दिखा, है ना, मालूम है ना?
जी महाराज, वो तो हाँ, काफी पवारी बाबा को चोर आया, चोरी करके जा रहा था तो उसके पीछे दौड़े और उसको पकड़ा और कहा जी। प्रभु तुम आए थे, मेरे काम कर रहे थे, ये लो तुम जो ले जाना चाहते महाराज, ये तो बड़े एडवांस थे। मैं ये कह रहा हो। हूँ अब कि यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, देखो कहा है कि नहीं, एज यू एडवांस लिखा है कि नहीं, लेटर में क्या लिखा है, फिर से पढ़ो तो लेटर। when one is strongly connected with the supreme self, the pairs of opposites do not exist. हाँ, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड विद गॉड, हाँ, strongly connected. मतलब भगवान से अभी तो जब स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाओगे तो जी। संसार का चिंतन नहीं रहेगा बाबा, अधिक अधिक कम होता चला जाएगा संसार का चिंतन। हाँ, अभी तो हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ असर तो होता होगा। हाँ, वो तो होता है, धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संसार के प्रति वितृष्णा हो जाएगी। तो संसार क्या है, यही राग द्वेष ही तो संसार है। राग इसमें जो है अच्छा बुरा, यही तो संसार है। ये संसार जो है वो सेकेंडरी हो जाएगा और वी विल नॉट बॉदर अबाउट। जी जी, मतलब ये हम रिलेट कर सकते हैं उस श्लोक से महाराज जी, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महते भयात्। नहीं नहीं, नॉट दैट, स्वल्पमस्य यहाँ स्वल्प की बात नहीं है, ये तो एज यू एडवांस। और स्वल्पमस्य धर्मस्य मैं भय की बात है यहाँ पे, वहाँ भय की बात तो नहीं है। नहीं, भय की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नहीं, उसको कंफ्यूज मत करो। फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो दो चीजें हैं, गुड बैड की बात कर रहे हैं जी जी, और वहाँ पे भय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग बात है, उसको बिल्कुल मिक्स मत करो। ओके, यहाँ पे पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, बिल्कुल अलग बात है, वो अलग से चीज होती है। ठीक है। ऐसे भगवान से भजन करने से कई एडवांटेज होते हैं, तो भय भी दूर हो जाता है, ये डुअलिटी जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। जी ठीक है। ऑन पेज 225 लेटर 136 में फर्स्ट पैराग्राफ में स्वामी तुरानंद कहते हैं, when you call on God, then only you and God will know about it. If you make a mistake, He will correct it. My question is, what does it mean? How does God correct our mistake? वो क्या कहना चाह रहे हैं? Just सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? पहले पैराग्राफ में है महाराज जी, वेट अ मिनट, क्या है फिर से बोलो तो पहले पैराग्राफ में कहते हैं, when you call on God, then only you and God will know about it. And if you make a mistake, He will correct it. तो मेरा सवाल था कि इसका क्या मतलब हुआ, and हमारा how does He correct our mistake? How does God correct our mistake? अच्छा देखो, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है। तो जगन्नाथ के लिए जाओगे, रास्ता भूल जाओगे तो भी फिर धीरे धीरे भगवान उसको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। हाँ, वो मैं समझ गया महाराज। हाँ, वो तो हो गया ना। उसके बाद में सेकंड पार्ट में है वो समटाइम्स दे विल करेक्ट बाय आउटसाइड, अगर सिंसियर हो गए तो आउटसाइड मीन से होगा, कभी कभी अपने इंडिविजुअल होगा, कभी किताब पढ़ ली, कोई घटना हो गई, और ग्रेजुअली यू गो ऑन गेटिंग गाइडेंस। इसी हर एक एवरी सिंसियर साधक जी ये सब बढ़ता चला जाता है तो उसको अलग अलग प्रकार से सहायता मिलती जाती है। द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कभी किताब पढ़ ली, अब जूम मीटिंग में बैठ गए, अरे दिमाग में एक बात आ रही थी, बात हट गई। हम किताब पढ़ रहे हैं तो कोई मन में कुछ बातें उठ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं साधना के संबंध में। और क्रिश्चियन किताब, सपोज क्रिश्चियन किताब पढ़ रहे हैं, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तो देख लिया, अरे यहाँ पे तो जो ये लिखा हुआ है, हियर इज द आंसर टू माय क्वेश्चन। I get it. कभी हम लोग every sadhak he experiences it yourself. You must have experienced yourself for it. Yes, Maharaj, I remember now when I was thinking about a certain problem or issue, and I started reading Kathamrita, and suddenly I got my answer there. हाँ, इस तरह से तो वो कैसे अचानक मिल जाता है। हाँ ठीक है, हाँ। That's how to relate to it. Okay, Maharaj. Last question, Maharaj.
on page 229 letter 138 में last paragraph है, स्वामी तुरानंद वहां कहते हैं, however human character is formed by practicing disciplines life after life, but without comprehending this you people want success within 3 days. वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैरेक्टर तैयार होता है बाय डिसिप्लिन, डूइंग लाइफ आफ्टर लाइफ करते रहने से 3 दिन में नहीं मिलता है जैसे तो आप लोग सोचते हो. तो माय क्वेश्चन इज, दिस रेस्टलेसनेस एंड इम्पेशेंट एज एग्जीक्यूटेड बाय ए डिवोटी, aren't these good signs in a devotee? Does it not show yearning? नहीं, तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हो सारी चीज. यर्निंग और रेस्टलेसनेस को तुम मिला रहे हो ना. वो छटपटा रहा है ना महाराज जी. वो अरे छटपटाहट तो 2 दिन देखो, करके देखो, छटपटा से होगा. ठाकुर भी तो कहते थे, माँ 1 दिन बीत गया, तुम्हारे दर्शन नहीं हुए. एग्जैक्टली महाराज. रोने लग जाते थे, लेकिन उसके बाद क्या करते थे जी. दूसरे दिन सारे दिन तपस्या करते थे. अच्छा. सारा दिन निकल गया, उसके बाद रात को कहते हैं, माँ आज 1 दिन भी निकल गया. वो छटपट रेस्टलेस रहते ही नहीं थे. हाँ. After so bold... restlessness and a yearning. Yeah, I don't want to use the word restlessness. Right. There must be intense yearning कि आज मिलना चाहिए. जी. And infinite patience कि अगर 100 साल भी मुझे रहना पड़े, मेहनत करनी पड़े, भगवान 100 साल बाद दर्शन करें तो भी मैं कम नहीं करूंगा. जी. It's very, very important point. Yes, difference between restlessness and yearning. This is yearning, restlessness तो बिल्कुल ही अलग कर दो. yearning दो अलग चीजें हैं. और एक सूफी संत का है, कौन से शिबली थे या जुनैद था, उसने कहा कि अगर मुझे 100 साल भी बचा रहूं तो मैं एक जरा सा भी अपनी तपस्या को कम नहीं करूंगा. मैं जो ध्यान जप करता हूँ, नमाज करता हूँ, जरा सा भी कम नहीं करूंगा, भले ही मुझे 100 साल जीना पड़े. जी. So intense yearning and intense patience. Yeah. This is the most important, very important part of spiritual life. ठीक है महाराज. That's all महाराज. प्रणाम. अच्छा. Okay. तीसरा कौन है? कुंडू. महाराज प्रणाम महाराज. हाँ. महाराज, my first question, letter 133. is telling struggle alone does not lead to peace. One must surrender and submit. Struggle and surrender are opposite attributes. Can they be practiced together? क्या है? क्या पहला क्या है? He is telling struggle alone does not lead to peace. क्या है? चलो क्या पहला? Struggle alone. Struggle. वो तो discuss just now we have discussed. हाँ. But both must struggle and surrender and submit. हाँ. So now struggle and surrender are opposite attributes. Can they be practiced together? That's what is my question. No, they must be practiced together. Can they be practiced? No, must be practiced together. Intense struggle किया, खूब दिन रात लगा, और उसके बाद में शाम को यत्यत करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम. प्रभु जो कुछ मैंने किया है वो तुमको समर्पण कर रहा हूँ. प्रतिदिन हमको समर्पण करना चाहिए. और शास्त्र अपने उसमें भी आपको, मेरे का विश्वास है कि सभी को जिसको मंत्र दीक्षा हुई है, गुरु के निर्देश है, उसमें है कि नहीं? हाँ, समर्पण है ना? नहीं है? महाराज. पूरा कहते हैं सारा करो, जब ध्यान करो, इतनी देर करो, 108 करो, ये करो वो करो, सारा करने के बाद कहते हैं नाउ समर्पण, शरण. तो शुरू का तो आपने तपस्या संघर्ष किया है, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न किया है. अरे वो तो ये भी होता है कि अरे मैं भगवान को सब समर्पण कर रहा हूँ, तो मेरा कितना रेस्टलेस मन समर्पण कर रहा हूँ, ये तो अच्छी चीज समर्पण नहीं कर रहा हूँ. मेरा एकाग्र मन हो, इंटेंसिटी होवे, तब तो समर्पण करने में भी अच्छा लगेगा ना. यस महाराज, यस महाराज. तब फिर इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एकाग्र मन, और प्रभु ये तुम्हारे एकाग्र मन तुम्हें समर्पित.
तो intense yearning, intense struggle और intense समझ दोनों हो. Yes, Maharaj. Is it okay? हाँ, surrender. Yes, Maharaj. ठीक है. हाँ. Letter 134. हाँ. What is universal mind? Hmm. How is it different from universal consciousness? Hmm. Is Paramatman same as universal consciousness? Okay. हाँ ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन. तो यूनिवर्सल माइंड तो समझ गए कि नहीं? यूनिवर्सल माइंड एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस परमात्मा हुआ. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों में अंतर क्या है महाराज? अंतर मन और चैतन्य. मन को आप कॉन्शियसनेस से अलग करोगे कि नहीं करोगे? पहली बात ये करेंगे. ये दोनों को तो पहले समझ लो. दोनों को जो परमात्मा है हमारी आत्मा है. चलो आत्मा को लो. आत्मा तो हमारी कॉन्शियसनेस है. ये आत्मा और माइंड एक है कि अलग है? ये बताओ. अलग है. माइंड नीचे है महाराज. मतलब माइंड मैं लगाता हूँ. आदि तो कॉन्शियसनेस है. मन बुद्धि चित्त मन के भाग हो गए. मन बुद्धि चित्त अहंकार. और कहते हैं मन बुद्धि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्. हाँ. तो मन बुद्धि अहंकार ये चित्त जो है ये मन के भाव हो गए. मैं ये नहीं हूँ. हम शिव चिदानंद रूप शिवोहम. My consciousness and my mind are different. Is that clear? हाँ, ये माने समझ में आ गया. If that is there, then universal mind or universal consciousness भी clear separate होगा. हाँ, ठीक माने. Okay? ठीक माने. जो परमात्मा है परम आत्मा. That is universal consciousness. आत्मा हुई consciousness. परम यानी universal. तो universal consciousness and universal mind, these two are different. Yes, Maharaj. Okay. Now, letter 136. It seems that the desire for name and fame is more difficult to overcome than desire for physical comforts. They lie hidden. But will it not be late if we first fulfill the desire for name and fame and then try to realize God? और पढ़ो आगे. और पढ़ो तो. हाँ, ये लेटर में महाराज 136 में he says, however, if one has hidden desires for name and fame, one tries to realize God hurriedly and then become restless to achieve name and fame. But this does not work. Rather, first fulfill your desire for name and fame and then try to realize God. So my question is, if we first try to satisfy our desire and then try for God, will it not be late? ठाकुर क्या बोलते थे? ठाकुर तो बोलते थे छोटे छोटे डिजायर को पहले वो कर लो, खत्म करो. और बड़ी डिजायर को, छोटी डिजायर को विवेक के द्वारा उनको जो है त्याग, विवेक से त्याग निकले. लड्डू खाने की, ठाकुर को भी लड्डू खाने की क्या खाने की दरा हुई थी. उन्होंने खाया गई रहे मन. इसी को कहते हैं रसगुल्ला, है ना. ठाकुर को क्या खाया था मालूम नहीं. जलेबी खाई थी, रसगुल्ला खाया था. ये मन इसी को कहते हैं. हाँ, तो अब हम भी इसी प्रकार से वो उसमें क्या है, एक बार ठाकुर ने तो एक बार इधर उधर मुंह में घुमाया और पूरी तरह छूट गया विचार के द्वारा. हम लोग सारा जीवन करेंगे विचार तो भी नहीं छूटेगा. दुर्भाग्य ये है. और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो बड़े भोग हैं उनको विचार के द्वारा ही करना. भोग करने का कोशिश नहीं करोगे तो फंस जाओगे. हाँ, तो ये डिजायर फॉर नेम एंड फेम, ये मतलब ये तो हिडन सबकॉन्शियस डिजायर है. तो इसको ओवरकम करना इतना कठिन है, तो उसको फुलफिल करने की प्रयास करने की बजाय अगर पहले से उसको त्याग नहीं करना चाहिए. He is telling that does not work.
Actually, if you truly want God, I am just telling the second thing. हाँ I महाराज say, यहाँ तो ठाकुर बोलते हैं, तुरानंद जी ने कहा है कि छोटी डिजायर या नेम फेम की डिजायर को कर लो, ये ढीले ढीले ढाले भक्तों के लिए है। लेकिन जो सच्चा होगा कह रहा है, मैं लग के भगवान को प्राप्त कर लूं पहली बार, पूरे मन से लगा के भगवान को प्राप्त कर लो। हाँ महाराज उसके बाद क्या होगा, जो मेरी बची हुई जो भी इच्छाएं होंगी ना, भगवान उसको पूरा कर देंगे। अच्छा अगर तुम भगवान को पूरे मन से पकड़ो, प्यार करो भगवान से इंटेंसली, तो वो अपनी छोटी छोटी डिजायर भी पूरी कर देंगे। अच्छा महाराज ओके तो महाराज ऐसा है महाराज कि छोटी मोटी डिजायर को विचार करवाना छोड़ दो, महाराज बाकी डिजायर को ले दो, पहले भगवान को प्राप्त कर लो, सब फुलफिल कर देंगे। हाँ बोलो। महाराज उसके बाद तो डिजायर रहेगा ही नहीं। वही तो मजेदार बात होती है यही। हाँ उसके बाद डिजायर नहीं रहती है, फिर रहेगा भी ही नहीं, मिल जाता है, जरा से संतोष हो जाता है। संतोष हो जाता है बस। यस महाराज ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा शिवानी, शिवानी है कि नहीं? हाँ प्रणाम महाराज। अच्छा आ जाओ, तुम्हारे तो एक ही क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ 1 मिनट महाराज। जी हाँ महाराज, मेरा क्वेश्चन था कि इन लेटर 6 and page number 239, at the last blessings given by Turiyanand ji, can the blessings given by these people be real? Like he said, may you all live prosperous and happy. अब उसको थोड़ा फिर से तुम पढ़ो, तो पूरा सेंटेंस तुमने बीच में से जरा सा निकाल के पढ़ा है। आई वांट यू to read the whole sentence, ऊपर नीचे का जरा सा, because there is something else also. Okay, महाराज 1 मिनट। एक्चुअली उन्होंने हर लेटर में ब्लेसिंग्स दी हैं, हर बार ही यही चीज बोली है, कुछ ना कुछ अच्छा सा, तो इसलिए ये पॉइंट अराइज हुआ। नहीं, उसको पर्टिकुलरली देखो ना, मैंने यहाँ पे तुम्हारे रिप्लाई में किया है, रीड द फुल सेंटेंस बाय डूइंग एटसेट्रा, बाय डूइंग एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ लिखा है। महाराज आ गया, मैं पढ़ रही हूँ। ये है, kindly remember me to all the friends there, my best wishes and heartfelt love for them as ever. Convey my loving regards to your mama, please. May the grace of Sri Ramakrishna be with you always. May you all live prosperous and happy by doing what is considered right according to the light you have received from his teaching through his servant and son. हाँ, तो ये by doing स्वामी जी ने और ये भी लगा दिया है, may you be happy and prosperous by doing. So he is blessing, but also he is telling that do you have to do something also. तुम बैठे रहोगे, कुछ करोगे, पियोगे नहीं, खाओगे पियोगे, मजे करोगे, महाराज कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, ऐसा नहीं। यतीश्वरानंद जी कहते थे, हम उनको प्रणाम करते थे, महाराज bless, blessings are there, blessings are there, make use of them. This is a very important part. Now these people, they always pray for God. हम लोगों को भी सदा भगवान से कृपा का प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु शुरामया, ठीक है ना? संसार के सभी लोग प्रसन्न होवे, सबका कल्याण होवे, यह सब हमेशा हमको भी करना चाहिए। और ये लोग जो हैं, ये हमेशा करते रहते हैं। तो अब प्रश्न तो कुछ ही हो सकता है तुम्हारा, वो डूइंग गुड, दे आर a part of their life. और सेकंड पार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट, यतीश्वरानंद जी कहते थे, make use of them by doing. Blessings are there, make use of them. This is very important. ठीक है महाराज। जैसे कथामृत में है ना, वो कृपा बाता बोइचे, we have to struggle and then we can gain it. अरे संसार जो है सब संज्ञा, अच्छा
संतों की कृपा से ही चल रहा है, जैसा कहते हैं ना। हाँ हाँ जी और जी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अच्छे बने, हमारे जीवन में शांति आवे, शुभ आवे, हम साधना करते रहें, ये वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, हाँ महाराज, एक क्वेश्चन और था छोटा सा। हाँ। वैसे मुझे थोड़ा आंसर तो मिल गया था, पर मैं अब पूछ लेती हूँ आपसे, थोड़ा क्लियर हो हाँ। जाएगा। हाँ। पेज नंबर 227 में मैं पूरी लाइंस पढ़ देती हूँ। डोंट हाँ। वरी whether your meditation is going in the right direction or not. At हाँ। first, one should meditate on the Guru. There is no definite method regarding the meditation on the chosen deity. However, you go on practicing your sadhana, God will set everything right for you. तो my question is, which Guru? मंत्र जिन्होंने दिया है या रामकृष्ण जी? नहीं, मंत्र गुरु ऐसा है कि तो आपको तो हमारे जो मंत्र देते हैं तो मंत्र गुरु कहते हैं कि रामकृष्ण तुम्हारे गुरु हैं। जी जी। हाँ, और जब ध्यान करोगे तो कहोगे पहले अपने ये मंत्र गुरु का चिंतन करो और उसके बाद मंत्र गुरु को रामकृष्ण में विलीन करो। ठीक है महाराज। हाँ ठीक है, प्रणाम महाराज, थैंक यू। अच्छा, हो गया। उसका रिपोर्ट क्या था तुम्हारा? इंस्पिरेशन और साइकोलॉजिकल हेल्प क्या है? ब्लेसिंग्स आर गिवन, ओके। एक्सटर्नली a beneficial spirited atmosphere is created just as anger creates a opposite atmosphere. याद रखिए, ये ब्लेसिंग्स के द्वारा एटमॉस्फेयर जो है वो पवित्र शुद्ध होता है। है। अच्छा, चलो निवेदिता आ जाओ। जी प्रणाम महाराज। मेरा पहला क्वेश्चन है भक्ति के बारे में। तो मैंने वो कथामृत से भी ये लिया है, व्हाट इज सुपीरियर, भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति। और यहाँ कहीं पे लिखा है वचामृत में कि ये सुपीरियर है? हाँ, अगर हम ठाकुर को मतलब जान लेंगे ज्ञान से, क्यों हम लोग ये भक्ति के साथ साथ वेदांत भी पढ़ते हैं ना, तो जानने से ज्यादा भक्ति होती है कि नहीं, यही मेरा प्रश्न है। ऐसा है कि इट इज नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। हाँ, ये पूछ रहे हो। जी नाते जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्वम राम क्रमट लोचन। तुमने बता दिया कि जो नाथ है यानी विष्णु है और राम है, राम कृष्ण राम है, वो दोनों एक हैं। कि बाबा अच्छा। ये सब मैं नहीं जानता। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे तो राम ही मेरे सर्वस्व है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब आगे क्या है कि भाई तुमको बता दिया, बहुत बता दिया कि अरे राम है जो वो विष्णु है, यही विष्णु के अवतार है राम, वो विष्णु ही सब कुछ है। तो बड़े खुश हुए कि अरे अरे, मैं तो अभी तक राम को दशरथ का बेटा ही समझ रहा था, आज तुमने बता दिया कि वो विष्णु है, तो मैं बहुत, मेरे भक्ति और बढ़ जाए। तो कभी कभी भक्ति जो है वो यानी ज्ञान जो है वो भक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि फिर उसके बाद ज्ञान ही ज्ञान होता रहता है, भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्ति कम हो जाती ये है। बात तो जानो। अच्छा ठीक है। ये ज्ञान की अपनी बाधा भी तो है ना। जी जी। हाँ, तो उसको लिमिटेड वर्ड में रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोई 90% जो है वो भक्त है, तो उसको ज्ञान थोड़ा सा दे दिया बस सफिशिएंट है, ज्यादा होने पर वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन बार बार वही सोचता रहेगा क्या करना, ये ज्ञान में ये करना वो करना। मैं तो बता रहा हूँ बाबा, मैं तो अरे भाई आर्टिकल लिखा है मैंने, तो मैं एडिटर था वेदांत केसरी का, वो सब बाबा वो सब साफ हो गया। जो गुरु ने दिया है मंत्र जप करना है, बस थोड़ी सी बातें जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। वो इटर्नल कंपेनियन, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये 1-2 किताबें बार बार पढ़ो, तुमको साधना के संबंध में सारी बात समझ में आ जाएगी। ज्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा महाराज, एक प्रश्न और है कि जो मेडिटेशन हमें गुरु ने दिया है, जैसे कि वो मेडिटेशन तो बुक्स में मतलब दूसरी जगह बहुत अलग अलग तरीके की मेडिटेशन है, एक ही को पकड़ना है ना? नहीं, जो गुरु, इसीलिए तो गुरु ने दिया अलग से। वो ऐसा दिया है कि तुम दूसरे को भी नहीं दिखाओगे। हाँ ओके। फिर बहुत सारी टेक्निक्स है। अभी यहाँ पे एक आया भी तो है, महाराज बोलते भी हैं, अभी आएगा एक क्वेश्चन आएगा कि वो बताते नहीं है, गुरु जो है वो कुछ नहीं बताते। यानी भगवान जो है, भगवान नहीं, वो गुरु नहीं बताते, यानी यहाँ सब दिया नहीं जाता है मेडिटेशन। क्या स्वामी जगदीश्वरन जी खुद ये तुरानंद जी कहते हैं, आई डोंट नो।
ये I don't समझा know नहीं that- महाराज क्या बोल रहे हैं I don't, तुरानंद जी अभी यहाँ आएगा एक जगह पे, हाँ हाँ तुरानंद जी कहते हैं कि I don't know about meditation. अच्छा क्यों? क्योंकि तुमको सब गुरु ने दे दिया है, अब किताबों में हाँ। मेडिटेशन मत पढ़ो, तो चक्कर अच्छा, आ अच्छा। जाएगा, समझ में नहीं आया, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। महाराज जी, आपने अभी कहा कि भक्ति और ज्ञान के बीच में ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो बॉन्डेज बन सकता है। तो वो कैसे होता है महाराज? वो जब होएगा तो पता चल जाएगा तुमको। ज्ञान से अहंकार आ जाएगा। अरे ज्ञानी हो जितना जाओ। आपकी मेन साधना जो है उसको बनाए रखो। हाँ उसमें भी टाइम कम हो जाएगा। अब वो ऐसा है कि तुम अगर आधे घंटे 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसके बदले किताब पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जी लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जो आपकी साधना में यूजफुल होवे उसके ज्यादा नहीं। जी जी इसलिए बिल्कुल। कभी कभी तो ये से डिस्कशन हो रहा है, ये साधना में हर कोशिश करता हूँ कि ऐसा डिस्कशन ये हमारा होवे जिसमें इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं होवे, हमारी साधना से हाँ। संबंधित बातचीत होवे। और जी। लकीली देखते हैं कि साधना के संबंधित बातचीत होती है। मैं भी ज्यादा जानता नहीं बाबा उसके इंटेलेक्चुअल क्या होता है, जो थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है उसको मैं करता हाँ वो ग्रंथी बन जाता है। सही। हूँ। वो बहुत बड़ी गलती हो जाता है। तो महाराज क्या है कि एक तो तुम्हारा निवेदिता, दूसरा उसके प्रश्न बाद- है व्हाई हाँ। गीता इज गोल फॉर डेथ ऑल्सो। यहाँ ठहरो, पे लिखा है। एक मिनट ठहरो, तो एक मिनट ठहरो। तुम्हें इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हो ना? जी जी इंटेलेक्चुअल में इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दिस मैटर, प्रैक्टिस व्हाट इज सूटेड। ओ ऐसा है क्या होगा कि जो ठीक रहेगा भगवान खुद तुम्हारे को बाधाएं दूर हो जाएंगे, वॉट एवर नेसेसरी इंटेलेक्चुअल पार्ट तुमको मिल जाए। इंटेलेक्चुअल उसके लिए वो तुम्हारा वो नहीं होना चाहिए, आग्रह नहीं होना चाहिए। हाँ तो तुम्हारा आग्रह है ना, रोज लेक्चर हो रहा है तो जाएंगे। हाँ 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 तब रोज तो सब 10 प्रकार के साधु आते हैं और अलग अलग प्रकार के लेक्चर देते हैं, तो दिमाग में जो है वो एक इंडाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल। हाँ तो फिर नशा के समान हो जाता है। नहीं नशा भी हो जाता है, फिर काम की दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ दिमाग कचरा हो जाता है। हाँ उसके बाद ऐसा है कि ये आगे चले, एक जैसे न्यूज़पेपर में काम दिमाग खराब होता है, इसलिए बहुत सारा पढ़ने से भी होता है। और ठाकुर को पढ़ो ना, ठाकुर तो कितना पढ़ते ही नहीं थे। और कोई बोलता था कि मैंने सुना कितना है, लोग ठाकुर जो है वो बिल्कुल एनकरेज नहीं करते थे। आजकल इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं ओवर थिंकिंग, वो ओवर थिंकिंग हो जाता है। ओवर थिंकिंग, हाँ ओवर थिंकिंग तो करना चाहिए। बहुत ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं ना उसको। अच्छा अच्छा। महाराज अच्छा, बोलो दूसरा तो। प्रश्न है व्हाई हाँ। गीता इज गोल फॉर डेथ ऑल्सो। यहाँ पर तुरानंद जी कहते हैं ना लाइफ एंड डेथ, तो Yes. डेथ से क्या क्या है संबंध? क्या है? व्हाई गीता इज गोल फॉर डेथ ऑल्सो। हाँ यानी प्रयाण काले मनसा चलेन हाँ बुद्ध्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स परम स्थानम उपैति दिव्यम। कहा तो है अच्छा कि मरने के समय अपने भ्रूमध्य में मन को लगा के मरेगा। तो मरने के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं गीता में कि नहीं दिए थे? देखो ना। हाँ दिए हैं। हाँ 16वां अध्याय भी पढ़ते हैं ना, मुक्ति। है 16वां अध्याय भी पढ़ते हैं ना उस हाँ वक्त। हाँ उसमें तो सब दिया है उसके लिए। हाँ काफी तो- डिटेल में सब हाँ कुछ। तो जीवन मृत्यु यानी क्या है? जन्म मरण के चक्कर को नष्ट करना। जी अम्बत्वा अम्बत्वा, यही तो है ना, इसी पे तुमने प्रश्न उठाया। हम्म, अम्बत्वा अनुसंधाने भगवत गीते भवद्वेषिणी, भगवान संसार का द्वेष करने वाली, यानी ये संसार चक्र जिसमें हम बंधे हुए हैं उसका नाश करने वाली। हाँ जी। तो ये संसार भी मार हो तो संसार में मृत्यु भी है, हम सब जाने वाले हैं। एक मिनट महाराज जी, ये डेथ का कंसर्न में मेरा एक सवाल ये था कि हाउ टू लर्न टू एक्सेप्ट डेथ।
अब वो एक अलग अलग बात क्वेश्चन है। हो जाता है, ये अलग क्वेश्चन हो बड़ा जाता बात है। है। दूसरा, यहाँ पे तो ये जहाँ पे जन्म है तो वहाँ मृत्यु तो मृत्यु होगी होगा ही। ही। हाँ बिल्कुल क्लियर बात, सीधी समझ लो जी, बस। वो बराबर जी। अब इससे ज्यादा यदि करना है तो फिर लोग कहते हैं कि अलग अलग मेथड है, पढ़े रहो, सीधे पढ़ जाओ रोज और ढीला छोड़ दो, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अच्छा जी जी। अब ये मैंने कभी किया नहीं है और सुना है बस। नहीं, पर ये करने पे तो डेथ ही आ जाएगी ना महाराज जी, नहीं ये तो तो इसीलिए थोड़ी मैं होगा। इसीलिए तुम्हारा ये तुमने प्रश्न किया, तो तुम्हारा जवाब दे दिया, क्या करूं मैं। लेकिन ये जानो कि सभी जी, मरेंगे, हाँ सभी मरेंगे, और हम लोग तो तैयारी में रहो। 75 के ऊपर 80 हो गए हैं, तो हम लोगों को तो बढ़िया जाना ही है, पड़ेगा। जल्दी जल्दी होने वाला है। कब होने वाला है ये कोई छुट्टी जानता मिलने नहीं। वाली है। तो ये गीता में तो भगवान ने कहता है ना, भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, मन को गले में यहाँ पर सिर में लगा के और हाँ। जैसे जाते हैं, इसे गीता में तो मृत्यु के बारे में भी कहा गया। हाँ। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ मोर्टिफिकेशन इन स्पिरिचुअल साधना? पेज 219 में है। मॉर्टिफिकेशन, हाँ, व्हाट इज, मतलब खुद को अपमान करना, खुद को डाउन करना, नहीं 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 नहीं, मॉर्टिफिकेशन यानी ये नहीं है, प्रायश्चित। प्रायश्चित नहीं है, तो तपस्या, वेरी स्ट्रॉन्ग तपस्या। मॉर्टिफिकेशन यानी तपस्या, मतलब तमोगुण का तपस्या। न तपस्या, तपस्या। अच्छा, तपस्या। हाँ, महाराज इस पे ऊपर लिखा कैसे है ये देखिए, पढ़ो ना। 219 में। वेट, हाँ, austerities. Mortification is same as austerities. mortification in Mortification the austerity. beginning, महाराज जी लिखा है, in the beginning contrition and contrition and mortification might have some necessity, but they are harmful if anybody harbors them excessively for a long time. ये इससे तामसिक के बारे में लिखा है ना महाराज? तामसिक तपस्या जो शरीर को बहुत तकलीफ दे देकर करते हैं। हाँ 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 हाँ, लेकिन थोड़ी सी तो आवश्यक है। मतलब कई शरीर को जैसे जलाने का, ये करने का, ऐसे करते हैं ना, एक पैर खड़े रहने का। ऐसा है कि साधना में तपस्या जो है वो सब जगह, उपनिषद, गीता, सब में तपस्या की बात कही गई है। हाँ, गीता में तो पूरा तप है ना, एक पूरा चैप्टर है ना, जी। तामसिक, राजसिक, सात्विक, वो तपस 3 प्रकार के तप हैं। मन का तप है, शरीर का तप है, वाणी का तप है। ये सब का सब गीता के कौन से चैप्टर में, 16 चैप्टर में या 13 चैप्टर में, कौन से चैप्टर? 17 में। हाँ, हाँ, 17। और ये जो ये यहाँ पर जो कहा गया वो क्या तामसिक के बारे में कहा गया, तपस्या, ये पूछ रही हूँ। तो अब देखना, फिर से बोलो तो, सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बोलो तो। हाँ, in the beginning, हाँ, in the beginning, contrition and mortification might have some necessity, but they are harmful if anybody harbors them excessively for a long time. ठीक है, ठीक तो है। कंट्रीशन यानी वो अनुशोचना, जी, मैंने बुरा किया, और तपस्या करना, ये शुरू में आवश्यक है, लेकिन उसको बहुत अधिक महत्व दोगे तो उससे वो नुकसान हो जाएगा। तो कंट्रीशन, अरे मैंने बहुत बुरा काम किया, अब बुरा काम किया तो हो गया, खत्म हो गई बात, उसको अब आगे से मत करना। लेकिन उसी के पीछे पड़े हुए हैं तो सारा मन उसी में लगेगा, भगवान में नहीं लगेगा। और तपस्या को इतना अधिक महत्व नहीं देना, थोड़ा सा दे दिया, ठीक है जी। चलो चौथा, आस्तिना, निवेदिता, बंद हो गया, बोलो निवेदिता। yes. हाँ, In the beginning, all work is done to realize God after attaining Him
further work is for his sake only. One is then full to brim and has no more needs. मैं खाली प्रश्न इधर है कि यही क्या अकर्म कहते हैं गीता में, जो अकर्म की बात कही गई है? अब उसको कहा है तुम कर्म कर करना, इंटेलेक्चुअल पार्ट क्यों करते हो? नहीं, प्लीज एक्सप्लेन दिस। ये जो काम, मैंने वो कंटिन्यू उसको करो, उसके बाद जनक की बात भी आई है, उसको पढ़ोगे हाँ, तो समझ में जनक। जाए। पढ़ो तो पढ़ो। हाँ। पेज कौन सा है? पेज लिखा नहीं। क्या हुआ? पढ़ो। खोज रही हूँ मैं। 200 ही कुछ है, 219 के बाद। 19 के बाद ही होगा ना? हाँ हाँ हाँ, 19 के बाद। और तुम्हारे क्वेश्चन के साथ देना चाहिए था ना उसको। हाँ, वो भूल गया। नहीं मिल रहा। हाँ, ये आ गया महाराज। In the beginning, all work is done to realize God. After attaining Him, further work is done for His sake only. One is then full to the brim and has no more needs. The work which is done is the state is not for any selfish gain and is therefore not classified as work. Realizing the Lord, one no longer has to practice spiritual discipline to concentrate his mind on God. तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब अकर ये मैंने गीता में वो कर्म 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 की यहाँ तो बात कुछ की नहीं है, तुम क्यों लाते हो उसको? नहीं, नो वर्क हैज टू बी, मैंने अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, कर्म यानी वो जो जनक राजा जो थे वो मुक्त होकर सब काम किए तो हाँ, नहीं उसको और कुछ साधना जैसी चीज नहीं, सब कर्म जैसा जैसा है वैसा कि वैसा चलेगा बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न, हाउ डज द माइंड बिकम स्पिरिचुअल? ये तो साधना के द्वारा ही होगा। प्रैक्टिस के द्वारा। हाँ, 224। अच्छा, छठवां प्रश्न है, वी से Mother Sharda's mind is universal mind. If universal mind is also not infinite, then and permanent, how can we explain this? नहीं, उसमें यूनिवर्सल माइंड जो है ना, हाँ, तो वो भी यूनिवर्सल माइंड जो है वो संसार के मन के जैसा है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बस उसको क्या लेना देना, वो जो है वो परमानेंट नहीं है, बदलता रहेगा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है परमात्मा ठीक है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो यूनिवर्सल माइंड, वो भगवान संसार के समस्त मन के भीतर है। ये जो है टीवी चल रहा है और नाना सब बातें सारे संसार में विचार उठ रहे हैं, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। लोग कहते हैं काशी जाओ तो उसमें प्रभाव पड़ता है, तो काशी में यूनिवर्सल वाइब्रेशन जो है वो पवित्र है, तो उसमें प्रभाव पड़ता है। ये चीज होती रहती है, उसमें क्या प्रश्न है? तो ये मदर शारदा के जो यूनिवर्सल माइंड वो हमेशा रहेगा कि वो भी ये हो जाएगा? जब तक कल पर रहेगा। स्वामी जी बोले ना 1000 साल तक रहेगा, क्या रहेगा? उसके बाद ये हो जाएगा। अब तुम जो चिंता करते हो उसको। हमारा यूनिवर्सल माइंड भी तो माया है, इट इज आल्सो माया। ना तो है ही माया। नहीं, माया नहीं है। तो जो माया में उसी की वजह से सब हेल्प करते हैं, उसी की वजह माँ शारदा का मन जो है ना, तो विद्या माया हुआ था, विद्या माया नहीं, विद्या माया। माया तो है, विद्या माया हो गई जी। चलो भाई दिलीप भाई आ जाओ। बस महाराज। हाँ, प्रणाम महाराज। यस, मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड ऑफ द माइंड इन हिंदी? आत्मबुद्धि, मन बुद्धि और विवेक। यदि बुद्धि का त्याग, हाँ चलो पढ़ो। यदि बुद्धि का त्याग कर दिया गया तो फिर विवेक तक कैसे पहुंचा जाएगा? क्योंकि अभ्यास वैराग्य विवेक के द्वारा ही तो प्राप्त होता है। दिस इज अगेन इट इज रिटन इन पेज नंबर 221। देखो दिलीप भाई,
हाँ इसमें दो क्वेश्चन तुम मिला रहे mix हो। किया। हाँ पहले मन का मन, ये चीज पहले समझ लो, हाँ उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेना। जी वो ईशा अपने केनोपनिषद में है, हाँ श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत केनोपनिषद, वाचो। केनोपनिषद। केनोपनिषद, जी श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सब प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीता प्रत्यास्मात् लोकमितान प्रवृत्ते। क्या है फिर उसका अर्थ? तो क्या है कि हाँ ये जो भगवान, ये आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा हमारे जी। सब में आत्मा है, हाँ तो वे मन से भी अंदर है ना। हाँ मन से भी अंदर है। जी हाँ, जी तो बिल्कुल। मन का भी मन हुआ, हाँ कान का भी कान, यानी हम कान को भी सुनते हैं ना, कान को हमने सुना, अरे मैं कान में कान से सुन रहा हूँ, हाँ मैं मेरे मन के विचारों को मैं जान जाता हूँ। हम्म मैंने आंख से देखता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने आंख से ये देखा। हाँ तो ये जो आत्मा है हमारी, ये श्रोत्र की भी श्रोत्र है, मन की भी मन है, आत्मा की भी आत्मा है। जी ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस अब जी। आगे का क्वेश्चन करो। Why is the Jnani, follower of the path of knowledge, knowing himself to be the Atman, has realized that the body, mind, and intellect alone can work and never identifies himself with any action, that is all. बस ठीक है। अब मैंने जान लिया ना हम्म, कि मैं मन का मन हो, चाहिए मन तो अलग काम करेगा, अलग काम करेगा। हाँ मैं आंख से देखेगी, अब मैं हाँ अलग हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, इंजन के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, हाँ तो इंजन को तेज चल रहा है कम चला रहा है ड्राइवर जानता है सब। उसी प्रकार से हमरे मन का मन है, ये मेरा मन है, ये सेंसेस है, ये सब के सब काम कर रहे हैं और मैं आत्मा उससे भिन्न हूँ। तो हाँ वो करते रहे, काम करते रहे, मेरे को क्या दिक्कत? ओके जी इतना सेकंड पोर्शन भी समझ में आ गया? आ गया जी महाराज जी। हाँ। तो मैंने माइंड को अपना काम करता रहने देना चाहिए और हमने सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। हाँ हाँ, निश्चय, डेफिनेटली। ओके मन के साथ अपने को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करना है, राइट और बॉडी के साथ अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना है, आंख के साथ अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना है। जी okay we are above all the five senses, we are above all the five not only all five senses, mind also. okay जी हाँ। okay मेरा हाँ नेक्स्ट सवाल है टू ये हो गया, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया डिटेल हाँ से। हाँ जी महाराज जी बिल्कुल क्लियर हो गया। नाउ लेटर 130 to experience the truth one needs long practice with infinite patience. Here what is the meaning of infinite patience? इन्फिनिट, अनंत धैर्य, अनंत धीरज। हाँ धैर्य। हाँ हाँ that is right पर तो हाँ यहाँ पे 100 साल तक मेरे को ध्यान जब तपस्या करने को पड़ेगा, तैयार हो जाऊं, मैं तैयार हूँ, और जरूरत पड़े तो अगले जन्म में भी सब साधना करूंगा, अनंत धैर्य के साथ, जी हाँ चाहे कुछ भी हो जाए। ओके अरे तुम तो जानते हो ये पैसा कमाने में कितना धैर्य रखना पड़ता है। हाँ हाँ, उससे ज्यादा करना पड़ता है यहाँ पे साधना में। जी वहां तो पैसा कमाते हो, यहाँ पे इतना बड़ा और ज्यादा बहुत ऊंचा ट्रेजर है, बहुत बड़ा धन है यहाँ पे। चलो तीसरा क्वेश्चन आगे। महाराज जी इसके अंदर आगे लिखा हुआ है practice and renunciation are the main support. If one has steadfast devotion, everything becomes easy for by God's grace. हाँ, तो हाँ। दो चीजें जरूरत है, प्रैक्टिस है जी और दूसरा डिवोशन है, भक्ति है। हाँ और अगर स्टेट फास्ट हो, तुम अगर हाँ। भक्ति बड़ी ऐसी दृढ़ भक्ति होवे तो सब ठीक हो हाँ जाए। ओके राइट जी महाराज। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन यही था टू एक्सपीरियंस द ट्रूथ वन नीड्स द लॉन्ग प्रैक्टिस विद इन्फिनिट पेशेंस। ये हो गया। नाउ वी कम टू द लेटर 131 which says work is no longer necessary.
महाराज जी ये कुछ डिस्कस हो चुका है, पर मेरा प्रॉब्लम इसमें कंटिन्यू है. वर्क इज नो लॉन्गर नेसेसरी, रादर इट शुड बी slackened so as to maintain an unbroken current of thought. Work, either internal or external, must go on, for it has already been distinctly stated that no one can remain even for an instant without doing work, as Gita says. Maharaj ji, here first said, work no longer necessary. ये पहले लिखा है तुरानंद जी ने. और देखो बाद ऐसा है कि तुम्हारा अगर मन एकाग्र हो गया, हाँ ध्यान में बढ़िया हो गया, बैठने लग गए, हाँ तो पहले इतना सारा कर्म कर रहे थे, हाँ रोज ऑफिस जा रहे थे, 8-8 6-6 घंटा लगे हुए थे, तो जी अब तो तुम्हारा ध्यान बढ़िया होने लग गया है, तब क्यों चक्कर में जाओगे उसको? बराबर. लेकिन सेकंड है, लेकिन घर में भी तुम रहोगे तो थोड़ा सा तुमको काम तो करना पड़ेगा. हाँ पड़े तो नहीं रह सकोगे, थोड़ा ध्यान करोगे, मन का काम करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल. अपने श्राइन को साफ करना पड़ेगा, हाँ जप करना पड़ेगा, जी तो कर्म तो करोगे. कोई भी न तो कोई भी जो है वो कर्म छोड़ के नहीं रह सकता. केवल ये है कि तुम उसका स्वार्थी कर्म नहीं करोगे. पहले स्वार्थ से कर्म करते थे, लेकिन अब स्वार्थ से नहीं करोगे. करोगे भगवान के लिए करोगे, और भगवान जो है फल देते रहेंगे. बराबर. And that should be the internal, not external. और एक्सटर्नल थोड़ा तो होगा, कमरा साफ करोगे, भगवान को श्राइन करोगे, अगरबत्ती लगा दोगे, थोड़ा सा बाहर भी हो जाएगा. अच्छा जी महाराज. हाँ, next question. Krishna advises people work without motive as far as possible. हाँ, my question is, in a सांसारिक जीवन में how is it possible in day-to-day life when we work for our bread and butter? तो देखो ऐसा है, हाँ, ब्रेड एंड बटर ये है, भगवान ने कहा है जो 100% भगवान के शरणागत हो जाता है ना, हाँ उसको भगवान ही देगा. उसको योगक्षेम वहां में हम भगवान कहते हैं गीता में, हाँ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. जो पूर्ण रूप से भगवान में शरणागति होती है तो वो ब्रेड के ऊपर बटर लगा के देते हैं. हाँ ब्रेड एंड बटर नहीं, ब्रेड पे बटर लगा के देंगे भाई. बराबर. ये पूर्ण हाँ, शरणागति. अगर तुम पूरी तरह शरणागत हो, भगवान के ऊपर हो, तुम चिंता नहीं करो, तो जी. तुम्हारी ब्रेड एंड बटर बराबर मिलती रहेगी तुमको. ये इसके दृष्टांत होते हैं. अरे देखो ना, ये हम तो कुछ नहीं, ब्रह्मेशानंद जो है वो कुछ छोड़ छाड़ के चले गया, कुछ पैसा नहीं कमाते हैं, यहाँ हमको ब्रेड एंड बटर रोज मिलता है. With milk. जी तो महाराज. ऐसा जी. है कि ये ऊंची हाई लेवल है, याद रखो. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, ये ऐसा नहीं कि अभी तो तुम, लेकिन ये भाव जो है, देखो ये ध्यान रखो, जी जी. ऐसा मत सोचो ये ब्रेड एंड बटर आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, याद रखो. अच्छा बराबर. हाँ, जिसके भाग्य में होगा ना तो वो कहीं भी बैठेगा ना तो उसको खाना मिल जाएगा. हाँ तुम्हारे लिखा हुआ है, जो आपकी लिखा हुआ है, आपकी जो भविष्य में लिखा हुआ है, आपका खाना पीना जो है वो सब मिलेगा तुमको. इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है. इंडिया में तो, हिंदुइज्म में तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. बराबर. जी हाँ, जी उसके लिए इतना क्यों करते हो चक्कर, इतना ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंस क्यों कर रहे हो भाई, ब्रेड एंड बटर के लिए. बराबर. जी हाँ. महाराज. हाँ. जी. My next question, letter 132. हाँ. For I am the abode of Brahman, the immortal and the immutable, and of the eternal dharma, and of absolute bliss. What is the eternal dharma? शाश्वत धर्म क्या है? शाश्वतस्य धर्मस्य. शाश्वत धर्म जो ऐसा है कि हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, नाना प्रकार के धर्म है, ये धर्म नहीं मानते. हाँ शाश्वत धर्म यह है कि तुम सत्य बोलोगे तो अच्छा होगा, तुम झूठ जी. मत बोलो, दुखों का कल्याण करो, संयम करो, सेवा करो, मन से संसार के लोगों की प्रार्थना करो. ये जो नियम है ना, ये शाश्वत धर्म कहलाते हैं, याद रखिए.
These are the universal religion. ये जो है ये जी। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा तो वो हिंदुओं में भी है, वो मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है। जी। और झगड़ा होता है क्यों? अल्लाह के नाम से होता है और राम के नाम से होता है और काली के नाम से होता है। तो ये काली का धर्म और राम का धर्म में झगड़ा होता है, लेकिन शाश्वत धर्म क्या है? हाँ दोनों वही कहते हैं कि भाई सेवा करो, दोनों जी। वही कहते हैं कि ध्यान करो, दोनों वही कहते हैं कि राम ये भगवान के नाम का भजन करो। झगड़ा क्यों होता है? ये छोटी मोटी बातों से होती है। तो शाश्वत धर्म जो है वो शाश्वत धर्म के लिए भगवान कहते हैं कि जी। शाश्वत धर्म से सत्यस्य इत्यादि सब बात। ठीक हो गया दिवस भाई? जी महाराज जी। महाराज जी ये गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ही उस अव्यय अमृत ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हूँ तथा नित्य धर्म की एवं एकांतिक सुख की भी प्रतिष्ठा हूँ। यह वह नित्य धर्म कर दिया उसको, अच्छा शाश्वतस्य का उसे ट्रांसलेशन कर दिया है नित्य कर। ओके जी जी महाराज जी बराबर। नाउ माय नेक्स्ट, but one must try to maintain the spiritual current within constantly. At first, theory and practice are separate, but later they become one. महाराज जी ये हमें समझा दें। तो कुछ नहीं है, पहले तुम्हारे को ध्यान भी करना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। जी अभी आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही है, इतना सब पढ़ना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो थ्योरी हो गई है। जी और उसके बाद तुमको ध्यान जब भी करना पड़ता है। जी तो एट प्रेजेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर सेपरेट। हाँ पर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सब सुनने पढ़ने की वजह से समझ में आ गए मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके जी। तो उसके बाद ये शास्त्र न पढ़ते हुए सिर्फ मेडिटेशन में ही समय व्यतीत होता है। चल जाएगा तुम्हारी जरूरत क्या है? अभी तो बात हो गई ना, बहुत डिस्कशन हुआ इसका, अभी डिटेल में डिस्कशन हुआ ना। Okay. Maharaji, my next question. Here, Suryananji has written, even Holy Mother has initiated Swami Nikhilanandji. Even then, one has lot of hindrance, as Swamiji said. Why? When we understand that once the Holy Mother has initiated, then he has Jivan Mukti. नहीं ऐसा नहीं है, साधना तो करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, माँ शारदा जब जब ध्यान मंत्र देती थी ना, हाँ तब क्या कहते थे कि बाबा मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। जी यानी एक मंत्र देते ही तुम मुक्त नहीं हो जाते, मेरे को जो करना था वो कर दिया, अब हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्त हो हाँ, जाओगे। लेकिन जी भाई अगर शांति चाहते हो तो थोड़ा ध्यान दो। अगर तुम उसका आनंद इस जन्म में लेना चाहते हो तो लगाओ ध्यान, जब करो मजे से। अच्छा और नहीं करोगे तो मरने के बाद तुम मुक्त हो जाओ, हाँ उसके बाद जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ओके लेकिन अगर इस जन्म में ही आनंद लेना चाहते हो तो ध्यान जप करो। यानी साधना का आनंद लेना चाहते हो हाँ तो माँ ने कर दिया मुझे नहीं मिला, माँ ने कहा बेटा मैंने तो दे दिया तुमको, मंत्र दे दिया है, अब तुम ध्यान जप तो करोगे नहीं। साधना तो करो। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझना। हमने जैसे यतीश्वरन जी की बात कही ना, हाँ हाँ उन्होंने कहा, हमने कहा प्रणाम किया उनको, तो उन्होंने पीठ थपथपाई। मैंने कहा महाराज ब्लेस कीजिए, कृपा कीजिए। तो उन्होंने पीठ थपथपा हुआ है, क्या ब्लेसिंग तो है, ब्लेसिंग तो है और क्या चाहिए, मैं देखो कितने थपथपा रहा हूँ, पीठ दे रहा हूँ। बट यू मेक यूज ऑफ देम, उसका उपयोग करो तो राइट। यानी आप माँ ने दे दिया तो माँ ने मुक्त कर दिया तुमको, मरने के बाद मुक्त हो जाएगा, विदेह मुक्ति हो जाएगी। हाँ लेकिन जीते हुए जीवन मुक्ति अगर चाहते हो तो ध्यान जप करो, तपस्या करो। जी महाराज बहुत बहुत क्लियर। हाँ। जी हाँ। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन लेटर नंबर 136, देयर आर टू काइंड्स ऑफ साधना, प्रिपरेटरी एंड स्पॉन्टेनियस, व्हाट आर दे? एक्सप्लेन इसको करेंगे क्या महाराज जी? हाँ, प्रिपरेटरी साधना यानी
क्या कहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस करो, सुबह उठो बराबर टाइम पे, स्नान करो, पूजा करो, जप करो, प्राणायाम करो, इतना करो, वो ये हो गया। ये नियमित रूप से करने की यह है प्रिपरेटरी साधना। हाँ तो शुरू साधना के जीवन का साधना होती है, ये प्रिपरेटरी साधना से होता है। और ठीक है, बराबर, जी जी। अच्छा। और उसके आगे जब आप जाएंगे 10 साल 15 साल के, और उसके बाद में ध्यान के लिए बैठेंगे तो स्वाभाविक हो जाए। जी तो इसके बाद इतने सब करने की जरूरत नहीं। पहले तो प्राणायाम भी करते थे, आसन भी करते थे, सब करते थे ना। जी। अब नहीं करते, अब तो बैठते हैं, ध्यान जब करने बैठते हैं तो हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियस हो। तो अच्छा महाराज जी, एक बार जब प्रिपरेटरी कंप्लीट हो जाती है और स्पॉन्टेनियस होती, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइम फैक्टर, कभी भी किसी भी समय कर सकते, चालू वो हो जाए। कैसा भी, हाँ, कभी भी कर सकता है। और और वो कभी पहले भी stop हो अभी तो बराबर करना है, सुबह जाए। जी शाम को जी। करना है। हाँ। लेकिन अब बाद में क्या होगा, उसके बाद अभ्यास ऐसा हो गया है कि सुबह आप सोते रहना चाहोगे भी तो नहीं सोचोगे, अरे कभी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जी अब अभ्यास बन गया, वो कोई ना कोई उठा देगा तुमको। ओके। अरे हमारा तो स्पॉन्टेनियस हो गया है, हमको 12 बजे करेंगे या 8 बजे करेंगे, खाने के पहले करेंगे। कोई फर्क, नहीं, पहले तो उठा के तुमको कराई देगा। जो अच्छा प्रिपरेटरी है वो भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और स्पॉन्टेनियस भी स्पॉन्टेनियस रहेगी। ओके जी। पर हो गया इसमें महाराज जी, पर इसमें टाइम की डिसिप्लिन नहीं रहेगी है? इसमें टाइम की डिसिप्लिन नहीं रहेगी जो प्रिपरेटरी में रहती है। नहीं नहीं, वो प्रिपरेटरी में जो डिसिप्लिन है वो हाँ। स्वाभाविक हो जाएगी, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। पर वो रहेगी और सही। उसके अलावा भी जो है वो भी रहेगी। ओके जी। ऐसा है, 20 साल से तुम रोज सुबह उठ के ध्यान जब कर स्टेप रहे बाय थे, स्टेप ये होगा। प्रिलिमिनरी था ना। हाँ। अब उसके बाद 20 साल के बाद वह छूट जाएगा क्या? नहीं नहीं। नहीं। तो फिर ओके जी, राइट। My last question. हाँ। You, Suryanand ji says, you cannot say that you have had no past good karma, for you have had enough opportunity. How should Swami Suryanand ji knew it? हाँ, वो स्वामी तुरानंद जी जो है हाँ वो जान गए थे उसको, यह जो साधक था उसको कहा कि हाँ तुमने पहले बहुत सारा किया है, सब मैं जानता हूँ, यही हाँ। समझ लो तुम। ओके ओके उनको जी पता चल जाता था, वो सब समझ जाते थे। पहली बात है कि वो एक तो अंतर्दृष्टि से पहचान जाते थे, जी। और दूसरा है उसके व्यक्ति के व्यवहार से समझ जाते थे। अच्छा हाँ यानी अगर हम कोई एक बड़े महात्मा के पास जाएं, हाँ गेरुआ न भी पहने, जी ऑर्डिनरी कपड़े पहन के जाएं और बातचीत करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि भाई ये स्वामी जी जो हैं, ये जो सज्जन हैं, ये अशोक जी जो हैं, इन्होंने हाँ। साधना की है पहले। अच्छा बराबर तो जी जी। हमारी बातचीत से समझ जाएंगे, बैठने से समझ जाएंगे, उठने फिरने से समझ जाएंगे। हाँ। तो ये व्यक्ति जब स्वामी जी के ठाकुर तुरानंद जी के पास आ जाए तो तुरानंद जी समझ गए कि ये पहले साधना कर चुका है, इसलिए उन्होंने ये सब बातें। हाँ वो बराबर, इसमें लिखा हुआ यू हैव हैड नो पास्ट गुड कर्म हाँ, फॉर यू। हाँ एंड यू तुम्हारे मैं तुमको देख के समझ गया हूँ कि तुमने पहले कर्म बहुत अच्छे किए, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो। अरे अच्छे कर्म नहीं होते तो क्या जूम मीटिंग ज्वाइन करते? ओ ये महाराज एक प्रश्न है, वो जो प्रिपरेटरी और ये स्पॉन्टेनियस, वो गौनी भक्ति और ये पराभक्ति हाँ, ये बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है। महाराज जी, एक सवाल छोटा सा रह गया लिखने का, यदि परमिशन हो तो। लेटर में लिखा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए भंडारा ऑन द 13th डे आफ्टर डेथ? तो कहाँ लिखा हुआ है? हाँ हाँ महाराज जी, अब ये कहाँ लिखा है वो मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ है कि when I was reading it, हाँ लेटर है, पर जो लेटर आपने नहीं दिया था, पर ये लेटर है 140। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लाटो महाराज अब इस लोक में नहीं रहे। मुझे पहले तो हाँ हाँ, संकीर्तन करके उनका शरीर नौका में गंगा से होकर मणिकर्णिका ले जाया गया, और हाँ। वहाँ यथारीत स्नान पूजा आरती आदि पूर्व कृत्य के उपरांत
जब समाधि दी गई, हम लोग 13वें दिन उनका भंडारा करने के इच्छुक है। साधु हाँ। भोजन के द्वारा उनका अंतिम शुभ कार्य संपन्न होगा। हाँ, जी तो ये तो मरने के बाद में माना जाता है हिंदुओं में कि जी। जो आत्मा है ना, हाँ वो शरीर से जुड़ी रहती है, आसक्ति रहती है उसकी, वो अच्छा। 13 दिन तक आसक्ति बनी रहती है। जी इसलिए शरीर को ज्यादा दिन रखते नहीं, इमीडिएटली जला देते। हाँ फिर भी मेंटल शरीर के साथ मानसिक मन जो है उसके साथ में आत्मा का जोड़ बना रहता, वो भी 13 दिन बाद में खत्म हो जाता। जी तो उसके लिए उसको आत्मा को या शरीर जो जाएगा उस आत्मा को ये भोजन दे दिया जाता है कि भाई अब तुम संतुष्ट हो गए, अब तुम जाओ, मुक्त हो गए। तो जी ओके। तो ये सब ये आपके उसमें भी तो होता है ना, श्राद्ध होता है अभी हम लोग हमारे में होता है। नहीं, पर मेरा ये पूछना था कि संत महात्माओं के लिए भी ये होता ही है। हाँ 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 हाँ, सब मानते हैं। ओके जी हाँ, महाराज जी, तुम्हारा प्रश्न ठीक है कि संत महात्मा को हम लोग को न भी हो तो चल जाता है, लेकिन एक कर दिया है परंपरा चल। जी जी अरे इस बहाने भंडारा तो मिल जाता है यार, तुम क्या सोचते नहीं हो जरा सी इस बात। मुंह मीठा हो गया महाराज। महाराज एक प्रश्न पूछूं इस बारे में? भंडारे के बारे में पूछो। महाराज हाँ। एक प्रश्न है इसके बारे में। पूछो पूछो, जल्दी पूछो। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे कहते हैं कि जो आत्मा मुक्त हो जाती है या 13 दिन हो जाते हैं, फिर 1 महीना, साल, इस तरह से जो भी प्रक्रिया सारा कुछ करते हैं, तो इनको कहते हैं ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। तो इन ऐसा भी होता है कुछ कि ऐसा तब भी है उनका कि लिंक बना अब वो रहता है? यानी तुम्हारे मन इंडिविजुअल में है, जी तुम्हारे तक पूछा जाए तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तुम ही फंसोगे, उसको तो क्या होगा। अब मैं नहीं जानता क्या होता है, क्योंकि वो तो क्या है कि 13 दिन के बाद में वो नया कोई शरीर उसको मिलेगा, आत्मा कहीं दूसरे कुछ कहीं लोक में चले जाएगी, किसी दूसरे शरीर में जाएगी, ऐसा सब बोलते हैं। अब ये क्या होता है मालूम नहीं क्या। वो बता दो। जी महाराज ये इट इज सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, आध्यात्मिक कोई संबंध नहीं है। जी महाराज जी, शिवानी बस तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। शिवानी का हो गया महाराज। जी एक और प्रश्न है ना, पहले वाला एक और प्रश्न है ना। नहीं वो महाराज, हो गए हो थे गया मेरे। महाराज। माँ शारदा का तो हो गई, सब हो गई, हो गया मेरा ना। नहीं था। हाँ, हो वो गया था मेरा महाराज। था। अच्छा हो गया, ठीक। अच्छा सतीश शोएग आ जाओ, सतीश। सतीश 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 म्यूट नहीं खोला। हाँ चल, खुल गया हो गया। महाराज। हाँ आ जाओ प्रणाम सतीश, आ जाओ सतीश। जी। बंगाली पंजाबी का है प्रोनाउंस ऑफ सतीश, पंजाबी प्रोनाउंसिएशन। हाँ चलो। प्रणाम महाराज। हाँ, एक मिनट खुल ही रहा है। अरे ये भामरी जी तो एक बार इस बार मैं- देख ही नहीं रहे हैं, क्या बात। मुस्कुरा दिया। महाराज जी महाराज, मेरे छोटे क्वेश्चन महाराज। लेटर 136 पे, द पर्पस विल बी सर्व्ड इफ यू कैन यूनाइट द गुरु एंड द इष्टम। हाँ नेक्स्ट पेज पर कहते हैं महाराज, एट फर्स्ट वन शुड मेडिटेट ऑन द गुरु, देयर इज नो डेफिनेट मेथड ऑफ मेडिटेशन ऑन द इष्टम। वो तो मैंने कहा ना हाँ जी कि महाराज। ये इष्ट की जो मेथड है गुरु की, ये अभी बात हुई थी अभी, हाँ जी हाँ ये जी जो है वो किताबों में नहीं देते, लेकिन जब दीक्षा होती है तो प्रत्येक गुरु अपने शिष्यों को एक डेफिनेट मेथड देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसलिए कहा कि लोग पूछेंगे कि एक डेफिनेट मेथड हो तो बताइए, जी 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 तो ऐसे मेथड नहीं है। और दूसरा है गुरु को यूनाइट करने के बाद में ये ऐसा है कि ठाकुर खुद ही बोलते हैं या कहीं है, जब ध्यान करते हैं तो इष्ट गुरु आते हैं, गुरु बताते हैं ये देखो तुम्हारा इष्ट है, शिष्य को जी बताते जी हैं, गुरु बताते हैं ये तुम्हारा इष्ट है।
जी, शिष्य जी, जब देखता है तो गुरु जो है वो इष्ट के अंदर विलीन हो जाते हैं। राइट महाराज। तो शुरू और में मा- इष्ट और गुरु को अलग अलग ध्यान करते हैं, लेकिन बाद में गुरु जो है वो शिष्य में विलीन हो जाते हैं, दोनों एक। हम महाराज ध्यान के समय भी तो करना चाहिए जो नाइट उनको हाँ हाँ, गुरु और करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अच्छा अच्छा उसका मेथड होता है उसका वही तो महाराज जैसा गुरु ने, जैसा हमारी दीक्षा में आपके मंत्र, आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए उसमें दिया होता है। ठीक 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 महाराज। हाँ। उसने एक बार कहा था ना, गुरु का हृदय में ध्यान करना चाहिए और इष्ट का हाँ मन वो में तो, करना। लेकिन बाद में वो उसको बाद में जोड़ मिला भी तो देते हैं। जी 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 हाँ। उसका यही ऐसा होगा महाराज कि गुरु का ध्यान थोड़ी देर के लिए किया, फिर हाँ उसके हाँ 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 हाँ, हाँ। इष्ट में उसके बाद में इष्ट concentrate कर होना चाहिए। इसका ही कॉन्सेंट्रेशन महाराज। जी महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, as the universe is not infinite, so the universal mind is not infinite. The universal mind exists so long as the universe exists. महाराज गीता में लिखा है कि वो 11th चैप्टर है ना महाराज, अश्वत्था ट्री, इसमें कहते हैं कि इसका अश्वत्थमेनं तो सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जी जी महाराज उसमें तो उससे क्या लेना कहा देना, उससे कुछ नहीं लेना। वो प्रश्न तुम्हारा क्या है ये बताओ। जी जी महाराज उसमें कहा है कि ये जो संसार है इसका प्रभाव तो नित्य अनित्य है, ये तो हाँ चलता ही तो रहेगा। हाँ, जब लेकिन आपको यूनिवर्सल ब्रह्म माइंड ज्ञान, जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो जगत जो है वो इन्फिनिट होवे या फाइनाइट हो, सब गायब हो जाएगा। जी जी तो हमारे लिए तो यूनिवर्सल माइंड जो है ऑलवेज विल ऑलवेज एग्जिस्ट। नहीं नहीं, क्यों, जब आप यूनिवर्सल माइंड ही गायब हो जाएगा, ब्रह्म में विलीन हो जाएगा ना। ब्रह्म और यूनिवर्सल माइंड तो अलग हैं। ठीक 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 महाराज ठीक। कॉन्शियसनेस और माइंड अलग है, तो अभी बात किया, डिस्कस किया ना। राइट महाराज राइट। So you become one with the conscious mind, one with the universe, consciousness. जी जी राइट महाराज समझ गया महाराज। लास्ट क्वेश्चन महाराज, लेटर 132 में कहते हैं प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑन गीता। प्रैक्टिस दैट इज, ये तुम प्रोनाउंस करते हो प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा प्रोनाउंसिएशन है प्रैक्टिस। हाँ जी। इसका क्या मतलब महाराज, इसका ये कैसे प्रैक्टिस गीता? प्रैक्टिस गीता ये कैसे करना? गीता में जो भी पढ़ोगे उसको बहुत सारी बातें प्रैक्टिस करने की है। अच्छा तो भगवान ने गीता में कैसे बैठ के ध्यान करना है उसको प्रैक्टिस करो। हाँ जी 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 उसमें अध्याय, वो द्वितीय अध्याय में जो दिया है उसको करो। बहुत सारी गीता जो है प्रैक्टिस की बहुत सारी बातें कही गई है, उसमें से कुछ को लो, सबको एक साथ नहीं कर सकोगे। जी जी उनमें जो गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न, उनमें जो गुणों का वर्णन किया है उसको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने का। अच्छा चलो हो गया। महाराज जी I have to leave for a Kathamrit study circle meeting, तो मैं थोड़ा आपसे लीव ले रहा हूँ। जाओ सब तो सभी जा रहे हैं फटाफट, मेरा बिना बुलाए जा रहे हैं, बिना मुझे बताए जा रहे हैं। तुम जाके बताए, बहुत आपकी कृपा की जो आप बता के जा रहे हैं। लोग तो अपने से बिना बताए चले जा रहे हैं। ओके महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा देवाशीष है क्या? देवाशीष तो नहीं है महाराज जी, है ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं अभी घर पे आया, मैंने बाहर में था तो मेरा क्वेश्चन जब आया तो मैं सुनते सुनते आया गाड़ी में, तो अभी घर पे अंदर आ गए। कहाँ पे अभी? यहाँ पे हो कि यूएसए में हो? यूएस, अभी सैन फ्रांसिस्को में हूँ। ओके ठीक है, चलो बोलो, क्वेश्चन पूछो। अच्छा हाँ महाराज जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 1, लेटर 131, फॉर ए सेज who wants to attain yoga, action is said to be the means, but when he has attained yoga, serenity is said to be the means. So my question is, should a person not maintain serenity during doing karma yoga? दोनों चीजें, वो दो चीजें, वो एक सेरेनिटी और दूसरी सेरेनिटी, दो प्रकार की सेरेनिटी है। एक कर्म करते हुए हम सारा जीवन कर्म करते रहें लेकिन मन को शांत रखें। अच्छा, तो ये तो है कर्म के द्वारा समय शांत रहना।
हाँ जी लेकिन महाराज। जब कर्म समाप्त हो गया उसके बाद में फिर शांत रहना, तो उसमें दो प्रकार की शांति हो गई ना, कर्म की भी शांति हो गई और मन की भी शांति हुई। अच्छा जी महाराज तो जी। ये दूसरी प्रकार की शांति हो गई। दो शांतियों को जी मिक्स मत करो। ओहो, अच्छा, इसका मतलब है कर्म करते समय एक अशांति रह जाता है ये पार्ट क्या ऑफ द है, माइंड में। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना, उसमें हाँ वो जी। शम को उन्होंने ट्रांक्विलिटी किया है। क्या ओहो, है, या क्या है, यथा आरुरुक्षो मुनेर योगे कर्म कारणम उच्यते उच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः क्षम कारणम। कारण उच्यते। तो वहां पे जो है, उसमें जब कर्म में आप प्रयत्न करके एस्टेब्लिश हो रहे हो, निष्काम कर्म में एस्टेब्लिश हो रहे हो, इसलिए कर्म करना पड़ता है तुमको। उसके बाद में जब कर्म समाप्त हो गया, मन शांत हो गया, उसके बाद कर्म की जरूरत नहीं है, शांत रहो। दैट इज द पार्ट। उसके बाद ये में मन को शांत करो। हाँ, अच्छा जी महाराज जी। जी महाराज, थैंक यू महाराज, समझ में आया। बी सेम लेटर का बी क्वेश्चन है, हाउ विल ए पर्सन नो दैट ही हैज अटेन्ड योगा? भाई वो उसी के आगे ही है, पता ही चल जाएगा। यदा नेन्द्रियार्षु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ उच्यते। उच्यते। यहाँ 3 कंडीशन बताई है, क्या कैसे होगा योगारूढ़। 3 तुम्हारे क्वेश्चन के 3 आंसर हो गए। इंद्रियों के विषयों में वो आसक्त नहीं होगा। अच्छा, कर्म में आसक्ति होगी नहीं होगी, और समस्त संकल्पों का त्याग हो जाएगा। ऐसा जी योगी योगारूढ़ हो सकता है, योगारूढ़। जी महाराज जी, समझे समझ कि में नहीं? आया। हाँ समझ आया महाराज, थैंक यू महाराज जी। क्वेश्चन नंबर वो 3 है, मैं पूछूंगा तो फिर नहीं बताएगा, नहीं बता सकता। नहीं महाराज जी, आपका लेक्चर हो जाने के बाद फिर दोबारा सुनता हूँ मैं इसको। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, what is the unbroken current of thought? Suryanand ji Maharaj is talking about in the letter unbroken current of thought. ये भगवान का बारे में बोल रहे हैं। स्पिरिचुअल थॉट ना, माम चाहिए अव्यभिचारीण है, करंट ऑफ था अव्यभिचारी, कंटिन्यूअसली भगवत चिंतन करना, कंटिन्यूअस भगवत चिंतन करना, ये है। तो ये अरे हम महाराज जी, करते नहीं इसको है, हम इसलिए हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन इट इज द फंडामेंटल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करना। हाँ महाराज जी, ये अगर हम चलते फिरते अगर भगवान का नाम लेते हैं तो ये उनका चिंतन होने बराबर है क्या? वही तो बोला। हाँ, यतीश्वरानंद जी से एक डिवोटी ने, फॉरेन में एक डिवोटी ने कहा कि कितनी बार भगवान का चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम कितनी बार तुम भगवान संसार का चिंतन करते हो, तो संसार का चिंतन तो हमेशा करते हैं, तो भगवान का चिंतन हमेशा करना चाहिए। देयर इज नो एक्सक्यूज। तो ये प्रैक्टिस में कैसे उतारूं, मैंने जीवन में कैसे उतारूं? मतलब कि जब करते रहो। सुनो 15 दिन आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करो, अगले 15 दिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करो, उसके बाद 15 दिन दोपहर को भी करो, उसके बाद 15 दिन रात को सोने के पहले करो। पॉइंट इज प्लान करना पड़ेगा, ये बात को अपने बात को अपने मन में रखना पड़ेगा कि आई मस्ट डू इट। जब करना पड़ेगा। देखो, व्याकुल होना पड़ता है, हम बातचीत करते हैं, वी डोंट वांट गॉड, दैट इज व्हाई वी ऑल गो ऑन गिविंग क्वेश्चन, ये कैसे होगा कैसे होगा। वो माँ को है ना, माँ को बच्चे के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि वो भगवान बच्चे का ध्यान कैसे करे। शी इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ गॉड, माँ बच्चे को। उसके मन में ये प्रश्न नहीं आता है कि बच्चे का ध्यान, बच्चे को मैं कैसे देखूं, कैसे सोचूं। उसको तब मालूम है कि बच्चे को खाना कब खिलाना है, पानी कब देना है। वो ये नहीं पूछती है कि बच्चे को पानी कब खिलाऊं। We don't love God, that's why we all these sorts of questions we go on getting. कि कैसे होगा ये, कैसे होगा ये। समझ में भगवान कहते हैं, इसलिए यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते।
ऐसा भगवान का प्रेम है, कंटिन्यूअस प्रेम जब बना रहेगा तब होता है। जी महाराज समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, Krishna says Bhagavad Gita 14.26, he who worships me with the yoga of undeviating love rises above the gunas and becomes fit to be one with Brahman. Kindly explain this with an example so that we can practice. नहीं, ये जो बोला ना कि अभी वो बात किया, कंटिन्यूअसली जो सोचेगा व्यक्ति तो उसका माइंड जो है वो क्या है, ब्रह्म भूयाय सगुणा समति तेतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर तुम कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करो तो तुम्हारा माइंड और ब्रह्म तो एक हो गए ना। हाँ जी महाराज जी। हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल। हाँ जी महाराज जी। मैं यही दृष्टांत देता हूँ कि माँ का मन और बच्चा एक ही तो है जी, अलग तो नहीं है। इसका मतलब महाराज ये है कि does the above words indicate that mere knowledge of the self and its distinction with the body is not enough? With the help of bhakti yoga, the mind has to be fixed on the supreme Lord. ये क्या भक्ति योग को लाना है? तुम क्या सब कमेंट्री क्या कर रहे हो बाबा, मैंने समझाया ना। नहीं समझ गया महाराज जी, भक्ति योग इज एनफ। हाँ बस जी महाराज जी। भक्ति योग ब्रह्म भूयाय, तुम भक्ति योग के द्वारा ब्रह्म के साथ एक हो जाओ। जी महाराज जी। जी महाराज समझ में आया महाराज जी। थर्ड क्वेश्चन है महाराज जी, थर्ड क्वेश्चन है ये है मधुवनंद जी महाराज जी का। बट वन मस्ट ट्राई टू मेंटेन द स्पिरिचुअल करंट विद इन कॉन्स्टेंटली। ये तो समझ में आ गया, अभी बताया आपने। हाउ दिस सहज अवस्था और नेचुरल स्टेट कैन बी अचीव्ड, अभी अभी आपने बताया सहज अवस्था जो है। हाँ जी महाराज, इसको मैं स्किप करता हूँ। लेटर नंबर 4, नेक्स्ट लेटर में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द यूनिवर्स इज नॉट infinite, so the universal mind cannot be infinite. This is not understood. We had a conception that the universe is infinite. Kindly explain. हम लोग तो यूनिवर्स को infinite समझते हैं, पर यहाँ पर बोल रहा है कि अभी बोला है कभी तो कभी यूनिवर्स तो नष्ट होगा ना। बोलते हैं प्रलय होगा एक कल्प के बाद। प्रकृति भी, मॉडर्न साइंस भी कहता है ये सब उसके अंदर से करोड़ों अरबों साल पहले से एक उसमें से अर्थ निकली, पृथ्वी निकली और उसके बाद घूमने लग गई, गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो ये क्या प्रोसेस बता रहे हैं, जब अभी प्रोसेस है तो करोड़ों अरबों साल के बाद में वो समाप्त हो जाएगी। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ? मेरा क्वेश्चन यही है कि जो यूनिवर्स देख रहा है ये क्या इन्फिनिट नहीं है, मतलब ये सीमित है, इट इज लिमिटेड, अभी इट इज नॉट असीम नहीं है, इन्फिनिट नहीं है क्या? कैसे लिमिटेड हो सकता है? इन्फिनिट कैसे होगा? सभी चीजें तो लिमिटेड है, सूर्य लिमिटेड है, आकाश लिमिटेड है, आकाश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, यदि अनलिमिटेड होगा या लिमिटेड होगा उससे तुमको क्या फर्क पड़ता बाबा? Why ask such questions which have absolutely no relevance? थोड़े किसी साइंटिस्ट से पूछ लेना। नहीं समझ में आया महाराज जी। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। प्रणाम महाराज जी, थैंक यू। अच्छा, रीता विश्वास क्वेश्चन है? रीता है कि चली गई? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी एक ही क्वेश्चन है, लेटर 136 पेज 227। Here Swamiji says, at first one should meditate on the Guru. There is no definite method regarding the meditation on Ishta. By Guru, is it meant Diksha Guru or Sadguru? Yes, already covered. Now, what do you mean by Sadguru? By Sadguru, I mean Thakur. No, दीक्षा गुरु को शुरू में we begin with दीक्षा गुरु। हाँ। ध्यान करते समय दीक्षा का गुरु का ध्यान करना है। हाँ। और उसके बाद में इष्ट में तुम्हें विलीन कर देना। But there is no definite method to meditate on Ishta. Already discuss किया, इसलिए है कि yes. Definite method cannot be put in the book. ओहो। और तुमको तो डेफिनेट मेथड दिया गया है ना दीक्षा दिया गया है। yes. बस ठीक है, बस that's all. I just wanted to confirm. No, that's all. Bhuvan.
प्रणाम स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है कि when I try to meditate on my guru, sometimes my daughter's Gurudev comes to my mind, and sometimes my own Diksha Guru. So I just pray to either of them as they are Thakur in human form. There is not any conscious effort on my part to evoke just one of them. So is this all right? You see, it must not continue for a long time. Ultimately, you have to hold on to one. Ultimately, you have to hold on to your Ishta, whosoever might be the Ishta. दो तीन चीजें नहीं, शुरू में भले कर लिया, दो तीन को प्रणाम कर लिया, लेकिन ultimately you have to, when you meditate, you have to meditate only on one. And Okay. Any other questions? हो गया? सब हो गया कि नहीं हुआ? हो गया महाराज जी। Okay, thank you. Om शांति Shanti शांति शांति हरि हरि ओम ओम तत्सत तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है।